गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लर्निंग आइलैंड यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं सबको। आज क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर 11 का डिस्कशन करेंगे। दिस इज पार्ट 3 वीडियो। बिफोर दिस देयर आर टू वीडियो, पार्ट 1 and part 2. So those who had not yet been seen or watched those two videos, please watch those two videos, part 1 and part 2. Then also attend these. So far, we have discussed lots of things. The internal text has been analyzed and discussed for better understanding. Now, in this part 3 video, I will give you the answers of all the questions from this chapter. So let us start without any delay. See, these are the questions. Question number 1 I had discussed in the previous videos. So I am skipping this and starting from question number 2. What are the consequences of cutting a large forest area? Make a presentation or do a role play or write a story or a poem that shows what could happen if we continue to cut down trees in our forest. So first part, answer the first part. The loss of trees and other vegetation can cause climate change. Desertification. What is desertification? Means you have heard about the desert. No? There is no tree, there is no water, proper water, only sand. There is no grasses. So this is the desertification. If you cut down the trees, that is deforestation, it will make the land desert. It is desertification. Soil erosion, flooding. Flooding कैसे होगा? Because if forests are not there, then the earth becomes warmer. गर्म हो जाएगा और जहाँ पे आइस होता है बड़े बड़े हिमालय में, ठीक है, आइसलैंड में सारे आइस मेल्ट हो जाएगा एंड पानी होके पूरा फ्लड हो जाएगा. इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस. व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वी विल रिलीज carbon dioxide, all the human beings and the living beings, but there will be no plant for producing oxygen. So availability of oxygen reduces and carbon dioxide increases, and as a result, the world will be warm, hot हो जाएगा. ठीक है, this is the greenhouse effect. So greenhouse gases will be increased in the atmosphere, and a lot of problems for humans. A simple presentation I have made over here according to the question, so it may not come into your exam. Maybe it is given as a project. So I have made here. See, the first page is like this. This tree is green, and around this, all the trees have been cut. Okay, so these are green and the other cut. So the world will be like this. Okay, now index. Here I will give the definition, then causes of deforestation, effects of deforestation, forest degradation in India, and control of deforestation. ये 5 टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया. What is deforestation? So I am not going through this. आप इसको, ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके करके इसका नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, so I am going slow. Okay, I'm not discussing this. These are the pictures. Fire also damage the forest. Causes of deforestation, you see, human beings are using the trees for making different kinds of apparatus. They use doors, windows, bed, everything.
So trees are being cut. These are the cause of deforestation. Mining होता है, ठीक है, ये mining, ये सब effects of deforestation. इसमें क्या होता है, soil erosion होता है, expansion of deserts होता है, decrease in rainfall होता है, बारिश नहीं होगा, ठीक है, ये सब effects of deforestation, ठीक है. So I am not explaining because otherwise the video will be delayed and longer. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन करना मतलब फॉरेस्ट प्लांट लगाना है, ठीक है, लेजिस्लेशन कुछ रूल्स बनाना है कि ये करोगे तो पनिशमेंट होगा, ठीक है ना, वाइल्ड सेंचुरीज, कमर्शियल फॉरेस्ट प्लांटेशन, ठीक है, वो सब करना है. फाइनली मोटो होना चाहिए, प्लांट ए ट्री एंड ब्रीथ ऑक्सीजन फॉर फ्री. नाउ कम टू द क्वेश्चन given in the page number 227 to 229. Question 1. Figure shows items related to natural resources. Match them with their jumbled up names. Make another table and write the names of these resources. Classify these resources as renewable or non-renewable. See, here you see water is coming out from the tap. अब यहाँ पे जंबल दिया हुआ है, ये OCR के, पहले तो जंबल को प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ेगा, फिर इसको मैच करना पड़ेगा क्या होगा. देखो ये वाटर है, वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाला ATWRE, इसको WATR वाटर, तो लास्ट बार आएगा फर्स्ट में. फिर ये विंड है, विंड मिल, और देखो ये जो थर्ड वाला NDIW मतलब WIND होगा, ठीक है. तो सेकेंड लास्ट फ्रॉम टॉप विल मैच सेकेंड लास्ट ऑफ फ्रॉम द बॉटम, एंड द थर्ड वन यू सी फॉरेस्ट है. सो यहाँ पे देखो ऊपर से सेकेंड वन REFOST, रिफोस्ट मतलब इसको FOREST फॉरेस्ट, और सबसे नीचे में रॉक होता है, तो यहाँ पे OCR के मतलब ROC के रॉक, ठीक है, ऐसे मिलाना है जंबल आपको, ठीक है. तो यहाँ पे मैं सब दे दिया मैचिंग करके, ठीक है. इसमें से बोला कौन सा यूज, कौन सा नॉन, कौन सा रिसोर्स क्या है उसका, देखो रॉक है, मिनरल, विंड मिल है, फॉरेस्ट, ये जो सेकंड वाला है ना, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट सोर्स, विंड हो गया एटमोस्फेयर, विंड कहाँ से आता है, एटमोस्फेयर से आता है, वाटर कहाँ से आता है, रिवर एंड पॉन्ड से आता है, इसका सोर्स हो गया. अभी इसमें से रॉक, फॉरेस्ट, विंड, वाटर कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, कौन सा रिन्यूएबल है. आई हैव डिस्कस्ड विथ यू what is renewable and what is non-renewable. Again, I am telling you, renewable energy is those energy which is available every time, which can be produced, which can be reused, reproduced, and non-renewable है जो कि reproduce करना बहुत टाइम लगता है, millions of year takes, so it is non-renewable. इसको renewable करना आसान नहीं है. देखो minerals non-renewable है, ये minerals non-renewable है. फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट आप प्लांट लगाओगे तो फॉरेस्ट बन जाएगा. एटमोस्फेयर रिन्यूएबल है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट लगाओगे सब ऑक्सीजन आ जाएगा, सब आ जाएगा. रिवर पॉन्ड रिन्यूएबल है, ठीक है, इसको आप कटिंग कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू राइट T, इफ इट इज फॉल्स राइट F. Nature has all the resources to meet human needs. Yes, correct, true. Machine are a resource found in the nature. Is it true? No, machine नेचर में अवेलेबल नहीं होता है, ये होता है मैन मेड, तो इट इज फॉल्स. करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी मशीन आर ह्यूमन मेजर रिसोर्सेस. ह्यूमन मेजर नहीं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ये तो होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड. ओके, नाउ नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. इज इट ट्रू? यस, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है. and air is a renewable resources. ट्रू, क्योंकि एयर को रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स. In the blanks is in the most appropriate option. A fuel that is commonly used in two wheelers like scooters and bike is क्या है, kerosene and petrol.
डीजल भी कौन सा होगा, पेट्रोल। ठीक है, टू व्हीलर्स में क्या होता है मैक्सिमम, स्कूटर्स, टू व्हीलर्स बोला, बाइक्स इसमें पेट्रोल लगता है, डीजल नहीं लगता है। अच्छा, एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस इज, इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्सेस है, वाटर। ठीक है, नेचुरल गैस भी नहीं है। क्वेश्चन 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ये क्या, कोरल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। देखो, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, कोल रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस, देखो क्या, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, why do we say that petroleum is a non-renewable resource? पेट्रोलियम को हम नॉन रिन्यूएबल क्यों बताते हैं? Petroleum is considered a non-renewable resource because it takes millions of years to form from the remains of microorganisms and plants that get buried deep inside the earth. Once extracted and used, it cannot be replenished. ठीक है ना? Question 6. It is difficult to regrow forest. Justify this statement. Regrowing forest is difficult because it takes many years for trees to mature. Additionally, the soil may become degraded, losing its nutrients and structure due to deforestation. Soil का भी तो fertility कम हो जाता है ना एक बार यूज होने के बाद। soil में become degraded बोला था, making it less suitable for new plant growth. Human activities such as urban development and agricultural can you also hinder reforestation efforts. ठीक है ना, मिट्टी का पावर कम हो जाता है, बन सकता है बट ये टाइम लगेगा ना। जो नेचुरली प्लांट बड़ा होता है और आर्टिफिशियली बड़ा करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, बट होता है। दैट्स व्हाई इट मे बी कंसीडर्ड एज ए टाइम टेकिंग, है ना। रीग्रो करना बहुत आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज इन सच इन व्हिच you use natural resources, suggest ways by which you can reduce their use. Okay, देखो, कुकिंग इसमें होता है, नेचुरल गैस में होता है। वेज ऑफ रिड्यूस यूज सोलर कुकर्स। अब अगर सोलर कुकर्स यूज करते हो, सोलर एनर्जी, तो क्या होगा, तब ये नेचुरल गैस का यूज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, ये पे दिया चीज का नाम, इसका क्या यूज होता है, सोर्स बताना है, और इसका यूज कैसे कम करना था ये बताना है आपको। तो ड्रिंकिंग वाटर, सोर्स क्या है, वाटर। यूज है वाटर एफिशिएंट फॉसेट, मतलब जब भी आप वॉशिंग करते हो तब टैप को छोड़ना मत, जब नहाते हो तब पानी एक बाल्टी में ले लेना, लेके उसको यूज करना, यानी कि टैप छोड़ के तुम कर रहे हो, जब जब साबुन लगा रहा तब भी टैप चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यूजिंग पेपर, ट्री, इसका पेपर कहाँ आता है, ट्री से आता है। यूज डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, मतलब पेपरलेस कैसे कर सकते हो तुम, डिजिटली सब कुछ करो, प्रिंट मत लो। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोल, नेचुरल गैस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है, ये नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, कोल से बनता है। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट प्ले प्लान, जैसे कि सोलर एनर्जी यूज करो। ड्राइविंग ए कार, पेट्रोलियम लगाते हो। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर साइकिल और साइकिल। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। आंसर देखो, 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। एक तो ब्रीदिंग करते हैं हम, ये। दूसरा, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइंस, विंड मिल चला के हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एरोप्लेन, एरोप्लेन चलता है कैसे, अगर एयर नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। फ्लाइंग काइट्स, काइट चलने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहांसिंग द ग्रीन cover of your locality? Make a list of action to be taken. See, list of action to be taken. Encourage neighbors to grow plants in their gardens. Also, you take initiative, you plant the tree. Collaborate with local schools to create green initiatives. अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, माँ का नाम पे एक पेड़। ठीक है, हर जगह पे, अभी वर्ल्ड में ये हो रहा है अभी। So advocate for the protection of the existing trees and green spaces. Tree मत काटो. Participate in community tree planting at drivers. Plant trees in local parks and open spaces. जहाँ पे खाली जगह पे प्लांट करो, और उस जगह का जो ओनर है उसको बोलो ये प्लांट लगाओ अगर खाली पड़ा है तो। Question number 10. In the given illustration, we see that food is being cooked
यहाँ पे फूड कुक कर रहा है, किससे कर रहा है? सोलर पैनल से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग हियर? सोलर एनर्जी, डेफिनेटली सोलर प्लेट। नेम द बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी। इसमें बेनिफिट क्या है एंड ड्रॉबैक्स क्या है, देखो। बेनिफिट है, सोलर एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हेंस इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। सोलर एनर्जी यूज करने से कोई स्मोक नहीं निकलता है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, तो ये जो नेचर को पोल्यूशन नहीं करता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ये अवेलेबल है, ये खत्म नहीं होता है कभी। ड्रॉबैक्स क्या है? डिपेंडेंस ऑन वेदर। सोलर एनर्जी कैनॉट बी यूज ड्यूरिंग क्लाउडी वेज। जब क्लाउड रहेगा, बादल रहेगा आसमान में, तब तो सन दिखाई नहीं देगा और सन रेज भी नहीं आएगा। एंड एट नाइट टाइम ये काम नहीं करते हैं। ओके, दिस आर डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 11, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन लार्ज स्केल impacts the quality of the soil. Why do you think so? पेड़ काटने से सॉइल का क्वालिटी कैसे खराब होता है, ठीक है ना? देखो, without trees the soil can be washed away by rain, yes, leading to the loss of fertile topsoil. जो टॉप लेयर में रहता है सॉइल, वो रहता है फर्टाइल। अब जो पेड़ नहीं रहेगा, ग्रास नहीं रहेगा, तो बारिश में ये सब वॉश हो जाएगा, वॉश होकर रिवर में चला जाएगा, तो उस जगह का जो फर्टाइल सॉइल है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। And soil, enhancing its fertility and structure. Cutting down trees impacts the quality of soil because tree tall tree roots help to bind the soil together, preventing erosion. Question 12. Explain two ways in which human activities pollute the air. Propose one action which can help in reducing the air pollution. सी, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मैं इसका रीडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इफ आई गो थ्रू दिस इट विल टेक टाइम, तो वीडियो विल लॉन्गर, ठीक है, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट हैज ऑलरेडी बीन डन, सो दिस इज सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। क्वेश्चन 3, फैमिली, ये भी आप लोग देख लो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता मेरे को इसमें लिखना कमेंट्स में। क्वेश्चन 14, ये मैं बताता हूँ। fill in the blanks using the following terms: fossil fuel, forest air, petroleum, coal, water and non-renewable resources. देखो, यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला। नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, यहाँ पे क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल होगा, ठीक है ना। अब देखो, ये मैंने आंसर ये बता रखा हूँ, नेचुरल रिसोर्स या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल आता है फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। रिन्यूएबल में आता है वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द ट्रीज। ये भी आपको पढ़ लो, पढ़ के समझ लो, सेल्फ अंडरस्टैंडेबल, सेल्फ एक्सप्लेनेशन ये भी है। देखो, जस्ट मूविंग डाउन, यू पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, मैं पहला वीडियो में कर लिया था, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे आंसर है, अब देख लो, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, ओके। You will understand it because all this has been discussed earlier. Those who had not yet watched the first two video, part 1 and part 2 on this chapter, please watch this. So this is the last, this was the last question. So I hope you enjoyed and understood easily, my dear students. So those who have not yet subscribed my channel, please subscribe and also forward this video to your friends so that they can also get the benefit out of this video. Thank you. Bye bye. I will see you again in the next video.